Dear students, in today's topic, we will continue our theory. As you all know that we have already started the practical, the lab work, and I hope that all of you are practicing at your home. So today we are moving to further next topic, which is e-commerce. I will just introduce the topic today, and we will go further in detail in the next lecture. So what do you mean by internet commerce or e-commerce? You know that the buying and selling goods and products over internet is known as e-commerce. The sharing of business information, maintaining business relationships, and conducting business transactions by means of telecommunication networks and any kind of electronic networks is called electronic commerce. Or and what do you mean by internet commerce? By internet commerce, we mean the use of global internet for purchase and sale of goods and services, including service and support even after the sale. Internet commerce is one of the more general electronic commerce. So there are many types. Uh, the types of e-commerce, a few of the types of e-commerce are business to B2C, uh, business to business, B2B, business to business, B2C, I mean business to commerce, and then C2C, which is consumer to consumer or customer to customer. Let's move to the B2B. What is B2B? B2B, or which is also called business to business, in which participants are the organizations. And what is B2C? In B2C, the customer directly deal with the organization, avoiding any intermediaries, means जो बीच में कोई ऐसे होते हैं, मतलब ये डायरेक्टली क्या होता है, हम जो कंज्यूमर होता है वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं. Then the third one is C2C. Participants are all are individuals with no serving as buyer and the other as the seller. So let me explain what is B2B. Allows manufacturers to buy at low cost worldwide. Enterprises can sell to global markets, offers great promise of developing countries. For example, B2B means, for example, Dell अगर कोई Dell कोई प्रोडक्ट या Dell है, IBM है, या कोई भी ऐसी जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, वो किसी दूसरी कंपनी से डील करती है कि उसे कोई दूसरी प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि डेल की जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें सब सारी प्रोडक्ट्स तो डेल की नहीं होती. उसमें फॉर एग्जांपल उसमें चार्जर है, या उसमें बैटरी है, या उसमें कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की कोई ऐसी प्रोडक्ट है उसकी जो दूसरी किसी कंपनी से. तो इन B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली डील करेगी. एंड द अदर वन इज B2C, which is in which many goods and services are cheaper when purchased via web in the B2C. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कस्टमर्स डील डायरेक्टली विद द ऑर्गेनाइजेशन, अवॉइडिंग एनी इंटरमीडिएरीज. ठीक है, तो B2C भी मैंने आपको बता दिया. उसके बाद हम बात करते हैं C2C, आई मीन कंज्यूमर टू कंज्यूमर. तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या है हमारे पास? लेट मी एक्सप्लेन. Often done web actions such auction sites such as eBay. Growth of C2C is responsible for reducing the use of classified pages of newspaper to advertise and sell personal items. यानी अगेन मैं ये चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. ग्रोथ ऑफ C2C is responsible for reducing the use of classified pages of newspapers to advertise and sell personal items. यानी इसमें क्या है कि कस्टमर या कंज्यूमर डायरेक्टली डील करता है कंज्यूमर से. अब जैसे दराज.com यूज कर रहे हैं, या हम amazon.com, हम क्या करते हैं C2, हम वी आर डीलिंग B2C, यानी हम किसी डायरेक्ट हम ऑर्गेनाइजेशन को, कंज्यूमर डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को. यहाँ पर C2C की एग्जांपल, एक OLX की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि वहां पर मैं कोई चीज कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं खुद कंज्यूमर हूँ, तो कंज्यूमर आगे कोई किसी कंज्यूमर को सेल कर रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ C2C. तो देयर आर सो मेनी. समराइज मैं इसको इस तरह करता हूँ. इन बिजनेस टू कंज्यूमर e-commerce consumer deal directly with the organization. In business to business commerce, the participants are organization. In consumer to consumer e-commerce,
the participants are individual. Uh, let me explain few of the advantages that it is e-commerce. It is available 24 hours 7 यानी 24 घंटे और 7 दिन हर वक्त एनी टाइम यू कैन एक्सेस. इसमें यू आर नॉट बाउंड टू मूव एनीवेयर. ठीक है. और आपको इसके लिए अपना मार्केट नहीं जाना पड़ेगा. आप घर बैठे एट द कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन शॉप एट योर होम. यू और दूसरा क्या है, यू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटीज. आप क्या है, मल्टीपल स्टोर्स घर बैठे एक जगह पर बैठे हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स आप विजिट कर सकते हैं. और जो है वो बहुत सारे आप स्टोर्स विजिट कर सकते हैं. यू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटीज. और इसी तरह डिसएडवांटेजेस में क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज में ये हो सकता है कि यू कैन डू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. ऑनलाइन शॉप्स आर ओपन 24 आवर्स 7. ये तो एडवांटेजेस हो गई. यू हैव अ ग्रेट चॉइस ऑफ शॉप्स एंड प्रोडक्ट्स. ये भी इसकी एडवांटेज हो गई. देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये भी इसकी एडवांटेज होगी. डिसएडवांटेज में ये हो गया, समटाइम्स हैपन दैट द प्रोडक्ट we received is not as it was shown in the page. जो चीज हमें दिखाई गई वो हमें रिसीव नहीं हुई. sometimes the product is damaged or not or out of order or not working properly. जो फोटो में दिखाई गई थी वो हमें मिली नहीं. और समटाइम्स हम उससे रिफंड करना चाह रहे हैं तो रिफंड पॉलिसी में कोई अमाउंट की डिडक्शन हो रही है या अमाउंट जो है वो लेट मिल रही है. फिर एक और इसकी डिसएडवांटेज ये भी हो सकती है कि यू कैन नॉट ट्राई इट बिफोर यू बाय. अब हम फिजिकली जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हम कोई शूज वगैरह खरीदते हैं या क्लोथ्स खरीदते हैं तो हम उसे ट्राई करते हैं. उसे शूज को पहन के देखते हैं, अपना साइज चेक करते हैं, फुटवेयर या कोई ऐसी चीज. वेयर एज इन द ऑनलाइन शॉपिंग यू कैन नॉट ट्राई इट बिफोर यू बाय. उसको हम जब बाद में खरीदते हैं समटाइम्स साइज का जो कम ज्यादा होता है तो हमें वो रिफंड करनी पड़ती है. सो इट वाज जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. लेट मी I will move to the in further detail in the next lecture. Thank you. If you have any question, you may ask in the group. Thank you.